Hello everyone, so welcome back to our very new topic of your MSc second year, which is statistical mechanics. It is a very beautiful branch of science which combines the principle of statistics with the laws of classical and quantum mechanics, and we are learning the laws of classical and quantum mechanics with respect to the field of thermodynamics. So it's a very interesting branch. I hope we can learn many things through this topic. Before starting this topic, we are going to go through some important terms which are important to know before we learn statistical mechanics, right? Let us start with our first topic of macro state and micro state. I hope you have gone through your syllabus, and your syllabus contains the first thing that in your syllabus contains the topic of macro state and micro state. So we are going to go through this topic with an example, and then we will learn the definition and what specifically it states. If you want PDF, then do text me. I'll share the PDF of my written notes. Okay, so consider here a system. This is a system. This system contains large number of gas molecules. Okay, so the system contains large number of gas molecules, and here we can find out some parameters of these molecules, and the parameters that we can find out here is pressure, temperature, volume and density. Here in this system we have considered this system. In this system we can find out the parameters of pressure, volume, temperature and density. So these parameters which can be found out are here in this system are known as macro state. So in macro state of system we can find out only these parameters only, but we have more such parameters that we need to find out in order to know how a molecule or how a system exactly looks like, or how what is its position, exact position. We want to know about the momentum of a molecule, we need to know about the position, we need to know about many other parameters of the system, right? So we cannot find out the information about all such parameters through macro state of system. Through macro state we can find out only density, temperature, volume and uh, pressure, right? But we need to know more such parameters, more we need to know the information about more parameters to know about a particular system, to know about molecules, right? So for that we need microstate. So are you getting the point? Like, why do we need microstate? For macro state, in macro state of system we can find out the parameters of only density, temperature, volume and pressure. But in order to know the exact information about a molecule or a system, we need to know more such parameters. For example, if you want to know about entropy, you cannot know about entropy through macro state. For entropy you need to know the micro state of the system. If you know the micro state of system, you can know about entropy. Like I have given one example of micro state entropy, right? But there are many other such parameters that we need to find out in order to know about a system, right? So here let us read this out. Consider a system with large number of gas molecules. Here this is a system. This system contains large number of gas molecules. So here in this system we can find out which parameters we can find out. We can find out pressure, volume, temperature and density, which I have written here is P, V, T and rho, that is pressure, volume, temperature and density. So these parameters which can be found out through which this system can be defined. Through these parameters we can define this system, right? So these parameters are known as macro state of system, right? But we do not know, right, from pressure, from its volume, from its temperature and from its density, like what an exact
system is like through these parameters. So in order to know the full information about a system, we need to know its microstate. For example, I have considered a parameter of entropy. So this is a system, and if I increase the volume of the system, like the gas molecules in this system are at this age, right? But if I increase the volume of this system will look like this. So if I increase the volume here, the arrangement of molecule will increase. For example, this is not the system of increased volume. ये नहीं है हमारी सिस्टम जिसमें हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है, पर ये जो हमारी सिस्टम है इसमें हमने क्या किया है, हमारी सिस्टम की वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया है. तो इन वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, हमारी जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल की वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी. और चेंज हो जाने के कारण जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे. और अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, अरेंजमेंट बढ़ जाएंगी हमारे मॉलिक्यूल्स की, तो वहाँ कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा, एंट्रोपी, राइट. एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर जितना बढ़ेगा उतना एंट्रोपी बढ़ेगा. तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करने की वजह से हमारी एंट्रोपी बढ़ी है ना. तो एंट्रोपी बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट बढ़ने के कारण हमारी एंट्रोपी बढ़ी है. तो ये हमारी जो पैरामीटर है एंट्रोपी, ये हमें कब पता चली, जब हमें माइक्रो स्टेट के बारे में पता चला, जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ करी, ठीक है. बट इन माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की पोजीशन और वेलोसिटी हम माइक्रो स्टेट में फाइंड आउट कर सकते हैं. हम लोग मैक्रो स्टेट में क्या फाइंड कर सक रहे थे, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर. पर माइक्रो स्टेट में हम लोग हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और पोजीशन दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम लोगों को हर मॉलिक्यूल की ईच मॉलिक्यूल की पोजीशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, माइक्रो स्टेट पता होना चाहिए. तो हम लोगों ने भी दो टर्म्स पढ़ी है, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट. तो आप लोगों को थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल रहा होगा ये एग्जाम्पल से. पहले हमने देखा एक सिस्टम जिसमें हमने वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं की है, जिसमें गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, ये फिगर 1 वाली. तो उसमें हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते थे, कौन से पैरामीटर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी. पर अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ करी हो और मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो गई, तो अरेंजमेंट चेंज होने के कारण एंट्रोपी बढ़ गई. और एंट्रोपी अगर बढ़ गई तो इससे हम लोग माइक्रो स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो माइक्रो स्टेट हमें अगर पता चला तो उससे हम लोग और कौन से पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, राइट. So entropy can be defined in microstate. So we have taken this example of entropy in microstate, like how we can define microstate, how we can define microstate in terms of entropy, right. So हम और एक एग्जाम्पल लेंगे माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट का. जैसे यहाँ देखिए मैंने एक बॉक्स कंसीडर किया है ना, उसमें 4 ब्लू डॉट्स है और 4 वाइट डॉट्स है. बॉल्स समझ लो, आप लोग बॉल्स कंसीडर कीजिए. तो 4 ब्लू बॉल्स है और 4 वाइट बॉल्स है. तो मैं क्या बोलूँगी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पर है 8, 4 ब्लू और 4 वाइट. तो 8 बॉल्स होने के कारण ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई मैक्रो स्टेट, है ना. मैक्रो स्टेट क्योंकि ऊपर से जब हम लोगों को पता चल रहा है, अरेंजमेंट हम नहीं बोल रहे हैं, इसकी अरेंजमेंट हमको किससे पता चलेंगी, माइक्रो स्टेट से. पर अभी हम लोगों को ये 4 मॉलिक्यूल ब्लैक है और 4 वाइट है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 8 है. तो हमारी जो हमारी जो मैक्रो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, 8 हो जाएंगी.
पर अगर मैंने यही बॉक्स को शेक किया, ठीक है, शेक करने के कारण हमारी अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगी बॉल्स की, ब्लैक की जगह वाइट आ जाएंगे, वाइट की जगह ब्लैक आ जाएंगे, है ना। तो अरेंजमेंट चेंज होने के कारण हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्टेट हम लोग पता कर सकते हैं। तो हमें, हमारे पास पहले क्या थी, मैक्रोस्टेट थी। मैक्रोस्टेट क्या है कि हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पर जब हमने शेक करी तो उसकी अरेंजमेंट हम लोग कितने भी टाइप से कर सकते हैं, है ना। तो मैक्रोस्टेट कितनी थी, एक। एक कैसे थी कि एक बॉक्स है और उसके अंदर 8 बॉल्स है, 8 में से 4 ब्लैक है और 4 वाइट है, तो हमारी मैक्रोस्टेट कितनी हुई, एक हुई। पर जब हमने उसको शेक किया तो शेक करने के बाद उसकी अरेंजमेंट चेंज हुई। अरेंजमेंट जो चेंज हुई उसको मैं कितने भी टाइप से लिख सकती हूँ, है ना, कि मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 मॉलिक्यूल वाइट है और 4 में से, और 2 ब्लैक है, या 1 ब्लैक है और 2 मतलब ऊपर के रो में 1 ब्लैक है और 3 वाइट है। तो मैं ऐसे कितनी भी अरेंजमेंट लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे पास मैक्रोस्टेट कितनी थी, एक ही थी, पर मेरी माइक्रोस्टेट्स कितनी हो गई, मेरी माइक्रोस्टेट्स हो गई 1। सो आई होप आप लोगों को मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट का डिफरेंस पता चल रहा होगा, ये सिस्टम वाले एग्जाम्पल से प्लस ये बॉक्स वाले एग्जाम्पल से। तो इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट्स की, ओके। तो लास्ट वाले जो एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने देखा कि माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट से को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि माइक्रोस्टेट से हम लोग क्या पता कर सकते हैं और मैक्रोस्टेट से क्या। तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि माइक्रोस्टेट से हम बहुत अलग अलग पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिस्टम का, ठीक है। सो हम लोग ये रीड आउट करते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर टेकन इनटू अकाउंट। माइक्रोस्टेट डील्स विद द इंटरनल पैरामीटर्स। अब इंटरनल पैरामीटर्स से डील करता है मतलब क्या, कि मैंने जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्टेट से हम लोग पोजीशन एंड वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और पोजीशन एंड वेलोसिटी से अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो मैं वेलोसिटी से और क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मोमेंटम फाइंड आउट कर सकती हूँ। मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, मास कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी अगर है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, मोमेंटम। और अगर हमें मोमेंटम मिल गया और पोजीशन मिल गई तो हम कोई भी मॉलिक्यूल की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ अगर फाइंड आउट अगर हमें पता चल गई तो हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई ये वाली, तो हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पता कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कहाँ है, राइट। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टीज़ हमें किसकी वजह से पता चलती है, माइक्रोस्टेट की वजह से। तो माइक्रोस्टेट डील्स विद इंटरनल पैरामीटर्स, राइट। So a microstate is defined as a state of system, deals with a state of system where all parameters of the constituent particles are specified. Okay, so तो हम माइक्रोस्टेट में हमारे जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके सारे पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो यहाँ माइक्रोस्टेट में हम लोग मैंने जैसे बताया कि हमें क्या पता चलेगा, पोजीशन एंड वेलोसिटी। और वेलोसिटी से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंटम। तो मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। मतलब px, py, pz तीनों डायरेक्शन में, और x, y, z उसकी पोजीशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो मैनी माइक्रोस्टेट एग्जिस्ट फॉर ईच स्टेट ऑफ सिस्टम स्पेसिफाइड इन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स EVN एंड देयर आर मैनी पैरामीटर्स फॉर ईच स्टेट। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं माइक्रोस्टेट में। जैसे हमने देखा कि एक माइक्रोस्टेट थी पर उसकी माइक्रोस्टेट इन नंबर ऑफ वेज थी। जैसे हमने वो बॉक्स को शेक किया था तो उसकी एक माइक्रोस्टेट थी पर उसकी स्टेट कितनी थी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट करती है एक एक स्टेट के लिए भी, ठीक है। सो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड, और मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर हमें एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड ये चीज़ें अगर पता हमें चल गई कोई भी मॉलिक्यूल की, तो हम लोग हमें उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता चल जाती है।
और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से हम लोग फेज स्पेस निकाल सकते हैं। हम लोग फेज स्पेस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं और फेज स्पेस से हमें उसका रिप्रेजेंटेशन पता चल जाता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ लाई करेगा, पोजीशन 3 डायमेंशन में उसकी फेज स्पेस पता चल जाती है। ठीक है, सो इन क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड से फेज स्पेस फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, और फेज स्पेस रिप्रेजेंटेशन में हमें हमारे मॉलिक्यूल का पोजीशन मिल जाएंगी। ठीक है, और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, स्पेस रिप्रेजेंटेशन होगा एनर्जी लेवल्स का। सो इन quantum mechanics, energy levels and state of particles in terms of quantum numbers are used to specify the parameters of microstate। क्या बोल रही है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी लेवल्स हमें बताएंगी, एनर्जी लेवल्स और पार्टिकल की स्टेट, ये किसके टर्म्स में होंगी, क्वांटम नंबर के टर्म्स में हमें मिलेंगी। क्या, एनर्जी लेवल्स और पार्टिकल की स्टेट, और ये हमें हेल्प करेंगी उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो स्टेट ऑफ सिस्टम, मतलब हमारी जो भी सिस्टम है उसके जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है उसके सिस्टम के अंदर के, उसकी हम लोग इंटरनल पैरामीटर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरनल पैरामीटर्स हमको किससे किससे मिलेंगे, हमें इंटरनल पैरामीटर्स मिलेंगे माइक्रो स्टेट से, है ना। तो माइक्रो स्टेट से हमें पोजीशन और वेलोसिटी मिलेंगी, यानी पोजीशन और मोमेंटम, जिससे हम टोटल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जो स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू हमें किसकी स्टडी करवाएंगा, क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, बट इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के टर्म्स में हम लोग माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम की। ठीक है, तो ये हमारी थी माइक्रो स्टेट। अब हम देखेंगे मैक्रो स्टेट। तो मैक्रो स्टेट क्या है, ये मैक्रो स्टेट इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ सिस्टम where the distribution of particle over the energy level is specified। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, हमने एक बॉक्स कंसिडर किया, उसमें 8 बॉल्स थे, 4 ब्लैक बॉल्स थे और 4 वाइट बॉल्स थे। तो हमने क्या बोला कि मैक्रो स्टेट कितनी है उसकी, 8 मैक्रो स्टेट है। मतलब ये ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है पार्टिकल्स का, उससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं मैक्रो स्टेट। तो एक मैक्रो स्टेट में कई सारी माइक्रो स्टेट आ जाती है। तो सेकेंड लाइन वही बोल रही है, द माइक्रो स्टेट इंक्लूड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग पर्टिकुलर एनर्जीज। हर उसमें एनर्जी लेवल्स बहुत सारी होंगी मैक्रो स्टेट में, और अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जी होंगी, और अलग अलग पार्टिकल्स में मतलब अलग अलग एनर्जी है, तो अलग अलग एनर्जी लेवल की अलग अलग माइक्रो स्टेट्स होंगी। क्या होगी, माइक्रो स्टेट्स। मतलब एक माइक्रो स्टेट में कई सारी माइक्रो स्टेट आ सकती है। तो बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ वेज है, बहुत सारे वेज है जिससे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं एक सिस्टम में। वही हम लोग अलग अलग टाइप से अरेंज कर सकते हैं। मतलब एक जैसे वो बॉक्स था, उसको हमने शेक किया, एक माइक्रो स्टेट को हम अलग अलग इसमें शेक करने के बाद अरेंज कर सकते हैं, वो 4 बॉल्स को, 8 बॉल्स को, तो उसकी अलग अलग क्या हो जाएंगी, माइक्रो स्टेट हो जाएंगी। मतलब एक माइक्रो स्टेट की हमारे पास बहुत सारी माइक्रो स्टेट हो जाएंगी। तो ये था मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, ये 2 टर्म्स आज हम लोगों ने देखी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। आगे के लेक्चर में हम लोग और कई सारी टर्म्स देखेंगे, टाइम एवरेज, इंसेम्बल एवरेज, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फेज स्पेस। तो उसके पहले आप लोग मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट की स्टडी कर लेना। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आए। कोई भी समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होंगे